کہ ہمارے پاس فی الوقت بڑا ڈسٹربنس سحر اور افطار کے اوقات کو لے کے جی، سحر اور افطار کے اوقات کے اوپر بڑا ڈسٹربنس چلتا ہے، بڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہو کہ ڈسٹربنس پیدا کیوں ہوا، کہاں سے آیا یہ ڈسٹربنس، کیوں ہو رہا ہے، کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیے سحر کا ٹائم ایک جگہ پر کیلنڈر میں یہ لکھا ہوا ہے، اب فی الوقت موجود ہے 4:56، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ 5:06، یعنی 5:06، 5 یہ 10 منٹ کا فرق کیوں ہے؟ اس کے باوجود کہیں پر اذان جلدی ہو جاتی ہے، کہیں سیرن دیر سے ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی افطار کے وقت میں جاتے ہیں تو کوئی پہلے اذان دے رہا ہے، کوئی بعد میں سیرن بجا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ نصب میں اس پروگرام کے حوالے سے عوام کو بھی، ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ دراصل معاملہ کیا ہے۔ ہر علاقے کے فقہا وہاں کے لوگوں کے مزاج کو ذہن میں رکھ کر شریعت اسلامیہ اور مزاج انسانی ان دونوں کو ملحوظ رکھ کر آسانی کے لیے چند فارمولاز بتاتے ہیں، چند احکام بتاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ دنیا بھر کے ہر علاقے کے لحاظ سے یہ معاملہ ہے۔ ہمارے پاس دکن و اطراف، بلدہ و اطراف کہتے تھے، یعنی کہ دکن جو تھا، جو عثمان علی خان، نواب میر عثمان علی خان، نواب میر محبوب علی خان صاحب کا جو دکن تھا، جو جس کے اندر مہاراشٹر کا بھی ایک حصہ آتا ہے، کرناٹک کا بھی ایک حصہ آتا ہے، حیدرآباد اور پورا یہ تلنگانہ آندھرا آتا ہے، اس پورے علاقے کے اوپر ایک قسم کی مذہبی یعنی رواداری اور مذہبی یعنی پکڑ جن لوگوں کی تھی، انہوں نے لوگوں کے مزاج کو محفوظ کیا۔ نماز کے اوقات جو ہے، خاص طور پر نماز فجر کے اوقات، یعنی اوقات نماز کا ایک چارٹ بنایا گیا۔ اس کے اندر دیکھیے ناظرین محترم، نماز جو ہوتی ہے، نماز کے اوقات دراصل سورج اور چاند کے گردش کے لحاظ سے نماز کے اوقات دیکھے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ آسمان کو دیکھ کر فجر کا وقت متعین کریں، سورج کو دیکھ کر آپ یعنی اوقات نماز کا وقت متعین کریں، یعنی ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت۔ لوگوں کو لیکن عادت نہیں ہے، لوگ واقف نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ سیل والی گھڑیوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب لوگ گھڑیوں کو دیکھ کر اپنے اوقات متعین کر رہے ہیں، آسمان کو دیکھ نہیں سکتے، تو لہٰذا ایک باضابطہ تقویم بنائی گئی، ایک پورا چارٹ بنایا گیا سال تمام کے اوقات۔ اب یہ بات ہے کہ لوگ جب چاند یعنی آسمان نہیں دیکھ سکتے، تو اب جو مین وقت ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 6 یعنی 5 بج کر بالکل 5:15 مثال کے طور پہ، ہاں جی ہاں 5:15 5:16 پہ فجر کی نماز کا وقت آسمان کو دیکھ کر اگر شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو ہمارے یہاں کے علماء نے کیا کیا کہ 5:15 کو شروع ہو رہا ہے تو 5:15 کا وقت لکھنے کی بجائے 10 منٹ آگے کا وقت لکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر 5:15 ہی ایگزیکٹ لکھ دے، کیونکہ کوئی انسان آسمان تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور گھڑی جو ہے وہ الیکٹرانک گھڑی ہے اور یا پھر وہ سیل کی گھڑی ہے، اس میں اگر آگے پیچھے ہو جائے، ٹھیک 5:15 کو کوئی آدمی اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو ٹھہر جائے، تو کیونکہ وقت نہیں شروع ہوگا اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ نماز فرض ہے، ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو سوال ہوگا۔ تو بولے کہ پرابلم کیا ہے، نماز کا وقت پورا مکمل داخل ہو جانے دو۔ گھڑیاں الگ الگ، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پورے شہر میں جائیں تو الگ الگ اوقات ہوتے ہیں، یہاں سے اگر آپ 4 مینار تک گئے تو 5-10 منٹ کا فرق گھڑیوں میں ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرے کہ 5:15 لکھنے کی بجائے 5:25 لکھے، 10 منٹ کا فرق لکھے۔ ہر نماز میں ایسے ہی کیے، ظہر میں ایسے ہی ہے، عصر میں ایسے ہی ہے، مغرب میں 5 منٹ کا وقت دیے، یہ ہوتا رہا۔ ہو گیا، اب آگے یہ سال تمام کی بات ایسی رہی۔ افطار، یہ رمضان جب آتا ہے تو اب دیکھیے 5:15 صحیح وقت تھا نماز کے وقت شروع ہونے کا، لکھے تھے 5:25، لیکن اب سحر کا معاملہ آیا تو سحر کب تک کرنا ہے صاحب؟ فجر کا وقت شروع ہونے تک۔ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا مل صاحب؟ 5:15 کو فجر کا وقت شروع ہوگا، تو اب فجر کا وقت 5:15 کو، تو 5:15 ہی سحر کا اختتامی وقت لکھ دینا کیا؟ وہیں پر سحرن بجا دینی چاہیے کیا؟ بولے نہیں، ہم لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہمارا پیٹرن ہے زندگی گزارنے کا۔ یہاں کے لوگ آپ دیکھیے کئی دعوت میں 8:30 کو بلایا تو 9 بجے جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں 8:30 کو گھر سے نکلتے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ حیدرآباد اور دکن کی طرف نوابی مزاج پہلے سے ہے، یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں۔ تو اب اگر آپ 5:15 ٹھیک آپ یہ بولے کہ روزہ ختم ہونے کا وقت ہے، 5:15 کو اگر آپ سحرن بجاتے ہیں تو کسی کے منہ میں پان ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چائے ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں دوائیں ہوتی ہے، وہ دوائیں کھائے گا۔ سحرن کے بعد دوائیں کھائے تو کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔
सहरन के बाद वहां पर अजान दे दी जाए और उसके बाद तो रोजों का ख्याल रखा गया कि वो फजर का वक्त शुरू होने से 10 मिनट पहले सहरन बजा दी जाए, ताकि जिसके हाथ में मुंह में निवाला है वो खत्म हो जाए, जिसके हाथ में चाय है वो मुकम्मल हो जाए, जो दवा नहीं खाया वो दवा खा ले, और 5-6 मिनट के अंदर वो फारिग होकर बाज़ाब्ता तौर पर 5:15 को जो नमाज का यानी फजर का वक्त शुरू हो रहा है वो मुकम्मल हो जाए। हुआ क्या, ये मिजाज यहाँ पर चल रहा था कि लोग रोजगार की खातिर, अपने किसी काम की खातिर, नौकरी की खातिर, लोगों की खातिर यहाँ बसते। आमतौर पे जानते हैं कि हैदराबाद दक्कन हर एक के लिए मरगूब जगह है, रहने आए, यहाँ आए तो इनको बड़ा अचंबा दिखा, लेकिन अमानतदारी ये थी कि ये लोग यहाँ आके यहाँ के लोगों का मिजाज जानते, यहाँ के मशाइख और उलमा के साथ बैठकर इसकी हिकमत जानते, बजाय इसके लोगों को बताना शुरू किए कि देखो भाई, नमाज का जब तक आखिरी नमाज के वक्त तक आप सहरन के बाद अजान तक खा सकते हैं। नंबर 1, हमारे पास अजान हो रही है, वक्त दाखिल होके 10 मिनट के बाद आप अजान तक खिलाए। 2 साल लोगों के रोजे ऐसे जाए हुए। नहीं तो इसमें जो है, अगर कोई जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये आपका ये मिजाज है आपका जी, तो मिजाज को तब्दील होना चाहिए या शरीयत को तब्दील होना चाहिए? शरीयत तब्दील नहीं हो रही है इसके अंदर। जो लोगों ने बनाया है शरीयत का पूरा लिहाज रखकर मिजाज, देखिए शरीयत के अंदर तब्दीली नहीं, शरीयत की गुंजाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर सहाबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहर फरमाते थे, सहर जब रोक देते थे, सहर से अज़ां तक कम से कम 40 आयत पढ़ने के उतना वक्त होता था। एक जगह आया 22 आयतें पढ़ने का उतना वक्त होता था। अब आप सोचिए कि आयतें सहाबा कैसे पढ़ते थे। 22 आयतें पढ़ने कम से कम 10 मिनट लगता था। तो ये जो यानी सहर खत्म होने से अज़ां के दरमियान 22 आयतें पढ़ने का वक्त होता था। तो ये आयन शरीयत है, ये आयन शरीयत है। इसके अंदर एक हदीस लाई जाती कि हुजूर आखिरी वक्त तक खाने के लिए, भाई आखिरी वक्त का मतलब क्या है? कोई 2 बजे रात को उठ के खा ले रहा है उसको मना फरमाया, कोई रात में 10 बजे खा के सो रहा है उसको मना फरमाया। आखिरी का वक्त ये है कि मशकूक वक्त से पहले खत्म कर दो, यकीनी वक्त में। तो आयन शरीयत के मिजाज को देखकर हैदराबाद का जो हमारा यानी बल्दा व अतराफ का जो बनाया गया था वो था। ये हुआ कि इख्तिलाफ क्यों हो गया? बाहर के लोग एंट्री लिए, बाहर का मिजाज, और वहां से लाकर डायरेक्ट अहादीस को इम्पोज करने गए, यहाँ पर लागू करने गए, जबकि यहाँ के लोग एक अलग तबीयत। अच्छा ठीक है, आपको करना था, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पूरे उलमा को बुलाना था। भाई आप लोग शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, आप पहले लोगों के मिजाज बदलिए, उसके बाद आप नई चीज को, बजाय इसके ऐसा करने की वजह से कई लोग वक्त से पहले आप अजान देने की वजह से लोगों के रोजे टूट गए। आप लोग अजान दिला दिए, अजान तक खाने के लिए कहे, तो उस वक्त लोगों के रोजे खराब हुए। तो इस तरीके से ये इख्तिलाफ क्यों होता है? आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहां का मिजाज क्या लिहाज नहीं रखकर, वहां के लोगों की तबीयतों से वाकिफ नहीं होने की वजह से इख्तिलाफ होता है। ये एक मुझे इख्तिलाफ की वजह समझ में आई जो मैंने आपके सामने इस मौके पर लिहाज से रखा। अच्छा, अब हम जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बात जो होती है, अब जैसे एक बात की जाती है कि अब ज़माना डिजिटल ज़माना है। बिल्कुल, आपकी घड़ी में जो वक्त होगा मेरी घड़ी में भी वही वक्त होगा, सामने वाले की घड़ी में भी वही वक्त होगा, और पूरी दुनिया में भी अगर हम एक टाइम जोन में हैं तो 99% ये होता है कि सारे सेल में एक ही वक्त बतलाता है। तो पहले जो हमारे उलमा ने जिस एहतियात के तकाजे में वो 5-10 मिनट का बैलेंस फ़र्क रखा था, लोगों की तरफ से ये सबमिशन होता है कि आज उसकी गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना तजुर्बा शेयर करूँगा कि हम लोग मदीने शरीफ में थे, सहरी कर रहे थे, नॉन रमज़ान में सहरी कर रहे थे, और जिस इलाके में हम थे वहाँ की मस्जिद में नमाज का वक्त शुरू होने से पहले मौज़िन साहब अज़ान दे दी मदीने शरीफ में। और हमने वो मस्जिद के बारे में मालूम किया तो हमको मालूम हुआ कि वहाँ डिजिटल घड़ी है, सेटेलाइट से चलती है, आला तरीन इंतज़ामात वहाँ हैं। उन तमाम के बावजूद वहाँ पे अज़ान पहले हो गई और दूसरे घड़ियों में जो एग्जैक्ट टाइम था वो बतला रहा था। तो पहले तो ये चीज़ है कि एरर का अंदेशा आज भी है। और जो दक्कन का जो निज़ाम है इफ्तार व सहर का, कि 10 मिनट पहले आपकी सहरी ख़त्म करा दी जाए, एक 5 मिनट बाद में आपका इफ्तार खुला दिया जाए, तो ये जो तसव्वुर दिया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में जल्दी करो बोले,
تو تعجیل سے مراد یہاں کیا ہے؟ ताजिल से मुराद है डॉक्टर साहब, बात समझ सकते हैं आप. जल्दी से मुराद ऐसी ऐसा जल्दी नहीं ऐसा है जिससे, नहीं ऐसी जल्दी नहीं है जिससे रोजा खराब हो जाए. जी जल्दी से मुराद ये देखिए असल में क्या है, इसके पीछे की फिक्र इसलिए बोले कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन. नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक बात, पेपर में जो है जवाल और मतलब जो है तुलू और गुरूब का जो है टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है जी अब मेरी घड़ी सैटेलाइट से कनेक्ट है जी, तो अब वो टाइम बतला रही है अब तो मैं यहाँ के टाइम टेबल को क्यों फॉलो करूं? मैं यही आपसे अर्ज कर जी रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल अगर करना चाहते हैं, जी मिसाल के तौर पर मेरे डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब अगर करना चाहते हैं, मौलाना मुतहर हुसैन फारूकी साहब अगर करना चाहते हैं, कीजिए. जी आप उसको लागू नहीं कर सकते इस वजह से कि पूरे लोग एक मिजाज पे चल रहे हैं, एक जमाने से चल रहे हैं. आप इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं, आपका टाइम हो गया, आप खोल लीजिए. जी लेकिन आप उस लिहाज से कोई काम उमूमी तौर पर मस्जिद में कराना चाह रहे हैं, जबकि मस्जिद के पूरे लोग अबन जद्दन आबा व अजदाद से एक मिजाज को फॉलो करे हुए हैं, उसमें फर्क आ सकता आपकी वजह से. पूरे लोग परेशान हो जा सकते हैं. देखिए डॉक्टर साहब, जो ताजील जो कही गई है ना, वो कौन सी ताजील है? होता ये बाज मर्तबा हम भी देखते हैं कि इफ्तार का टाइम हो गया, आप बोल रहे हैं नहीं भाई मेरे को भूखने लगी, मैं चल रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, नमाज मगरिब भी पढ़ लिया. अल्लाह बतलाना ये चाहते हैं, हुजूर ये बतलाना चाहते हैं कि तुम मोहताज हैं, जी तुमको भूख लग रही है, तुम भूखे थे, प्यासे थे, फौरन तुम्हें कुछ चाहिए, तुम बेनियाजी अल्लाह के सामने मत बताओ. इस वजह से फरमाया. वो क्या करते थे लोग? वो करते थे, अरे अब हुआ होगा इफ्तार का टाइम है, मेरे को तो अभी भी भूख नहीं लगी, आधा 1 घंटा और आगे निकल जाता. वो बेनियाजी नहीं बताओ, मोहताजी बताओ. इस वजह से ताजिल का हुक्म है ना कि आप अपने आप को ताजिल 5 मिनट में ताजिल ताखिर हो गई 5 मिनट के अंदर. अच्छा अगर ऐसे ही है तो आप नमाजों के बताइए. ये एक निजाम है. देखिए मैं और एक बात अक्सर मैं आपको बता रहा हूं, फिक्र हनफी खास तौर पर एक इंतहाई प्रैक्टिकल फिक्र है, एक प्रैक्टिकल, और इसके ऊपर और फिक़्ह हनफी के ऊपर खास तौर पे यहाँ पर जो दक्कन के अंदर है, यानी सल्तनत आसिफिया के एक बड़ा दौर चला है, और उसके अंदर प्रैक्टिकल अमल, कोई चीज पेपर पे बता देना अलग है, लोगों के मिजाज में दाखिल कर कर प्रैक्टिकल तौर पर लोगों को एक जमाने तक, सालों तक, यानी दहों तक, सदियों तक लोगों को उस पर अमल पैरा रखना, ये बिल्कुल अलग चीज है. आप सिर्फ ये बता दे रहे हैं यहां पर जो हमारा मिजाज है, ये मिजाज और ये शरीयत लोगों को लेकर 200 साल चली है और इस लिहाज से चलते रहे हैं, इसके ऊपर अमल पैरा रहे हैं, और इस्लामी बाउंड्रीज की हिफाजत किस तौर पे हुई है. कोई नए आज आए, नई बात होगी, बॉम्बे में एक जगह होगी, तीसरी जगह, तो सब चीजों को हम लागू कर देंगे क्या? बल्कि दूसरे लोग जो कोई यहाँ पर आए हैं वो इसको फॉलो करने की कोशिश की. एहतियात सबसे अहम चीज है. बड़ी एहतिमाम से रोजा रहते हैं तो एहतियात बड़ी चीज है. तो डॉक्टर साहब ये जिम्मन बात आई थी इत्तेहाद के तौर पर, तो मेरी दरख्वास्त है, हम भी कोशिश करते हैं, हम कभी किसी इलाके पे जाते हैं तो ये अमानतदारी है कि उस इलाके की कोई नई चीज नजर आ जाए कि वहां के उलमा से मिल बैठकर उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि आप किसी तरीके से ऐलान कर दे कि ये काम गलत है, ये काम सही है. डॉक्टर साहब एक नहीं